Yeah. Yes, Alhamdulillah. Yesterday, which topic we had discussed? Which we have completed yesterday? Decimals was Decimals and completed. fractions. Yes, and fractions as a quick recap on the fractions. Whatever we studied in the fractions was, fraction is nothing but it is a part of a whole, right? Part out of whole. Aisha has scored 90 marks, 9 marks out of 10. It says that she has scored 9 marks out of 10. 10 is a whole and 9 is a part. What is a fraction? Fraction is a part out of the whole. Aisha ate 4 slices out of 6 slices. How do you write it in fraction, beta? So we write 4 out of 6. Yes, very good. Yes. What do we do here is we write 4. 4 is the part, right? It is part. And the whole is 6. Yes, mashallah, alhamdulillah. So your understanding is easily, barakallahu fiki. So this was done, right? We'll just quickly recap this. What was the answer for this, Aisha? 4 out of 5. Yes, very good. 4/5. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. Okay. This models we had studied about equivalent fractions, right? What was the equivalent fraction? The meaning of equivalent fraction is nothing but this half over whole is same as half over whole is same as 3/6 over the 6 parts, correct? What we discussed was 3/6 is equal to 1/2, correct? Yes. Yes, alhamdulillah. So what's the fraction part for this, beta? The fraction of the shapes are circle. What fraction of the shapes are circle? This one. Okay, out of 8, 9. Sure? 1 out of 9. Very good, beta, mashallah. Okay, alhamdulillah. Again, equivalent fraction we had studied. What was that? Tell the equivalent fraction for this, beta. It is 6 out of 8. Is it 6 out of 8 or 5 out of 8? 1, 2, 3, 4. It's 4 out of 8, correct? It is 4 out of 8 is equal to the half of entire circle, correct? Yes. Yes, alhamdulillah. Okay. Now today we will discuss, okay, this we had discussed in yesterday's class as well, correct? Yes, number line. Yes, mark the equivalent fractions on the number line. We divide 0 and 1 in 3 equal parts. It is same as dividing it into the 6 equal parts and writing the 2 by 6 instead of 1 by 3, correct? How did we do this? Is we divided 0 to 1 into 3 equal parts first, and then we divided it into 6 equal parts. Then we had mentioned we had mentioned each of it. How is it, Aisha, here? How do we mention 1 by 6 here? Why did we mention 1 by 6 here? Because after 0, the first part is 1/6, correct? 1. It is first part out of 6 parts that we have made, correct? Yes. Next, it is second part out of all the 6 parts we have made. Then it is third part out of all the 6 parts, and it is fourth part of all the 6 parts. It's 5 out of all the 6 parts. The same goes to this one, the upper number line. How did we do here, Aisha? What did we do here? 0. We had to divide it into 3 parts, right? 1 part, 2 part, 3 part. We have divided it into 3 parts. So it became 3. So in this is 1, 2, 3, 4, 6 parts. 5, 6. Yes, 6 parts. And 2/6 came exactly at the same position as 1/6. Got it? So they are called as equivalent. Okay? That's all. Alhamdulillah. So you understood what's equivalent fractions as well. So we had graphed 1/4 on the number line. How did we graph 1/4 on the number line? What we did was we considered another number line. We wrote 0 here and 1 here. Okay. Then we had to divide this number line. 1/4 is nothing but we have to make this number line into 4 equal parts. Correct? 1 part, 2 part, 3 part, and 4 parts. 4 okay. Parts. Yes. Now the first is 0. The last is 1. Now the first part should be 1/4, correct? The second part is 1, 2/4. Very good. 3/4. Then what's the last part? It is 4/4 or nothing but 4 cancelled out. It is 1, correct? So it is mentioned as 1. It is same as 4/4 only. It is 4/4 only. But 4 1 times is 4, right? How do you divide 4 by 4? You know how to divide 4 by 4? 4 by 4. 4 1 times is 4.
You know to divide it, right, beta? Yeah. You know the division? 9 4. We have to do 9 4s first. 4 ones are 4, right? 4 ones are 4. Yeah. So it is 0 is a reminder. What's the answer? It's 1. So we have written 1 here, correct? Yeah. Alhamdulillah. So you are understanding this concept easily? Yes. Now what we have told you, plot 1 by 4 on the number line. What's the 1 by 4 here, Aisha? Come on, plot it on the screen. Here, yes. Now they have told you to plot it on the given number line. Already given number line. Which is the number line given, beta? This one given number. Yes, given number line. Now tell me, where do you plot 1 by 4? In the same position where 1 by 4 is. See, I've drawn the number line in corresponding to the upper number line, correct? 0 is here, 1 is here. I have divided it into 4 parts, but here it is divided into 8 parts. What's the corresponding to 1 by 4, beta? It is exactly here, right? What is it? 2 by 8. Just here you have to plot it. That's all. So these are called as equivalent fraction. Very good, mashallah, alhamdulillah, you understood this. Okay, beta. Okay, now which fraction is equivalent to 5 by 10? Do you remember how did we solve this? We could have done it on the number line as well. Yeah. Right, but what we did was, 5. yes, what we did was we solved it through This is wrong. divisor rule. Okay, let's see. Let's not put wrong, beta. Let's not put wrong. Does the 5 goes in one table? Yes, 1 5 times is 5 now. Does it go? Yeah. Yes, it goes. And what about 2? Does 2 goes in one table? 10 goes in 2 table? 2 5 times is 10. Yes, beta. 10 goes, right? Yeah. Yeah. Understood? Okay. Okay, we'll see here. We'll see. We'll check everything. Okay, now let's write 5 by 10 in every row. Okay. Okay. We'll check everything. What we have to do here is, okay, let's check other things. Then we'll come to 1 by 2. Okay, let's check it here. Does 1 go in 5 table? Yes. Does 10 goes in 4 table? No. Do you know the table of 4? 4 ones is 4. Yeah. 4 2 is 8. 4 3 is 12. Yes, but is the 10 in the 4 table? No, right? No. So this is not satisfied. Now 3 over 10. Does 3 is 5 divisible in 3 table? No. No. So this is not the case. Now tell me, is this equivalent? Is 2 divisible in 5 table? Is 5 divisible in 2 table? Yes. 5 divisible in table 2? 2. Do you have 5 in 2 table? That's all you have to see. Yeah, we have 5 in 2 table. And which way, beta? 2 ones is 2. 2 2 is 3. 4 4 times 4. is 4. 4. 2 3 times is 6. 6. But there is no 5 in 2 table, na beta? Yeah. Are you getting me? There's Yeah. no 5 in 2 table. So only this is satisfied. So 1 by 2 is equivalent to 5 by 10. If this is getting difficult, then you can easily solve it using the number line. You can just put 2 lines here. Okay. What you have to do is 5 over 10. First write 5 over 10. First you have to divide a number line between 0 and 1 into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. We have 10 equal parts here now. And then we have to divide another number line into just 2 equal parts. Okay. Now where is 5 over 10? 5 over 10 is nothing but it's here, right? It is 1 over 10, 2 over 10, correct? Are you following me, beta? Aisha? Yeah. Are you following me? Yeah. Understanding this concept? Yeah. Yes. See this number line. How did we draw this number line? What we have written? 5 over 10. 5 over 10 is nothing but we are dividing whole line into 10 equal parts and mentioning where is 5. Now tell me where is 5 over 10, beta? Yeah. Yes, mashallah. It's 5 over 10 here. It's in the center, right? Now we have 0 and 1 number line. We want 1 over 2. We want this line into 2 equal parts, right? We just made 2 equal parts here, okay?
Where is 1 over 2 now? It's 1 over 2 is here. 1 over 2 is same as 5 over 10. So this is equivalent fraction. Correct or wrong? Correct. Yes, Alhamdulillah, you have understood this. Okay, beta. Now, what we have learned in previous classes, just let's summarize it quickly, okay? What we did learn here? We have learned to represent the fractions, right? How did we represent the fractions in? We had represented in number line, we had represented in models, we had represented in shapes, correct? Yeah. Chalo. Now tell me what's the fraction for this, beta? This is 2. This is 2, 3. 2 out of 3. Very good, beta. Now what's this one? It's a fraction, right? It is 2 out of 4. Now what is this, beta? 4 over? This is 1, 2, 3, 4. 4 out of 5. Yes, very good, beta, mashallah. So we've learned to represent the fractions, mashallah. Okay, now let's represent fractions with the objects. Now select a fraction of a quantity 2 by 3. Can you select the fraction 2 out of 3? How can you select in this, Aisha? Do you have any idea? No. No. Just first what we have to do is you have to calculate how many objects are there, how many fruits are there. Let's calculate how many, Aisha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yeah, 11. 12, beta. There are 12. Count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12, okay? Okay. Okay. Now what they have told you is make 3 equal parts and show 2 out of 3. Okay? How can you make 3 equal part of this, beta? We can make half groups. We do not want to make half groups here. We have to make one-third the groups here. How should we make it? How do we make it? We make like there are 12. इसमें 3 पार्ट बनाना है आपको. पहले हम देखते हैं 4 लेकर, ओके? इसको हम हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे. फर्स्ट पार्ट में एक रखेंगे, सेकंड पार्ट में एक रखेंगे, थर्ड पार्ट में एक रखेंगे, ओके? फिर से एक एक एक, ओके? एक 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 1 1 1. अब देखो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now how many fruits are there? 12 fruits. हमने क्या किया इसको? 3 पार्ट्स में रखा. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. करेक्ट? करेक्ट. हमने 3 पार्ट्स बना लिए इसके. करेक्ट बेटा? अब इसमें 2 पार्ट्स कौन से होते हैं आपको? फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट इज दिस, थर्ड पार्ट इज दिस. करेक्ट? Yes. Yes. Now, which is the 2 part out of 3 part is nothing but ये दो जो parts हैं. This is 2 out of 3. Correct? Correct or wrong? समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा. Okay, I'll tell you this one बेटा. अब इसमें आप मुझे half बताओ. Half of this, 1 by 2 of this. आप easily बता सकते हो इसमें, right? Yes. कैसे? कैसे आप कर सकते हो बताओ? Yes. पहले आपको काउंट करना होगा, राइट? यस बेटा. इसमें 1 कैसे आया? हाफ का मतलब 1 by 2 है. 1 out of 2 पार्ट. वो क्वेश्चन पूछते हैं आपको 1 out of 2 पार्ट्स बताओ. 1 out of 2 पार्ट्स इसको हाफ कैसे कर सकते हैं? ये आपके पास 10 बॉल्स है. I'll give an example, okay? आपके पास 10 बॉल्स है. मुझे हाफ ऑफ द बॉल्स दे दो आयशा. इफ आई आस्क यू मुझे हाफ ऑफ द बॉल्स दे दो तो आप मुझे कितनी बॉल्स दोगे? मैं आपको 5 बॉल्स दूंगी. यस, अगर आपके पास 10 बॉल्स है तो मुझे आप 5 बॉल्स दोगे. अगर मैं आपको पूछूंगी आपके पास 12 बॉल्स हैं तो आप मुझे हाफ ऑफ द बॉल्स दे दो तो आप कितने बॉल्स दोगे? आपके पास 12 बॉल्स हैं. आप कितने बॉल्स दोगे बेटा? 6 बॉल्स दोगे. वेरी गुड. कैसे 6 बॉल्स दोगे आप? आपके पास आधे बचेंगे या मेरे पास आधे बचेंगे? करेक्ट? हाँ. यस. सो यहाँ पे भी
12 बॉल्स हैं। देखो आप काउंट करके देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्होंने बताया आपको कि इसका हाफ दो, गिव हाफ ऑफ इट, सेलेक्ट हाफ ऑफ इट। आप कैसे सेलेक्ट करोगे? 6 सेलेक्ट करोगे, दैट्स ऑल। 1 2 3 4 5 6। इतने बॉल्स आप मुझे दे दोगे, इतने बॉल्स आप खुद रख लोगे, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है आपको? जी। अगर मैंने हाफ के बजाय आपको 2 आउट ऑफ 3 बताया होता तो आप इसको कैसे करते? आपको नहीं देती। आप मुझे नहीं देते क्योंकि आपको नहीं पता था कि 2 आउट ऑफ 3 कैसे बनाते हैं इस बॉल्स का, करेक्ट? जी। यस। मेरे साथ एक और है, ठीक है? आपके साथ एक फ्रेंड है, आप आयशा हो, आपके साथ एक फ्रेंड है, उनका नाम है लाइबा, और अब एक हूं मैं, ओके, योर टीचर। 3 लोग हैं, ओके? आपको 12 बॉल्स को इन तीनों में बांटना है। आप कैसे बांटोगे बेटा? मैं उनको आधा आधा करके बांटूंगी। आधा आधा कर दोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपको 3 में अच्छा अच्छा बांटना अच्छा, है। तो मैं आपको मतलब 4 दूंगी, मैं 4 लूंगी और वो एक और बच्ची 4 लेगी। ओह दैट्स ग्रेट। सो यहाँ कैसे आपने बांटा इसको? आपने क्या किया? 4 4 4 किया ना? यही था लास्ट क्वेश्चन में, ओके? लास्ट क्वेश्चन में यही था, यही बताया गया था। ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स को आपने 2 बच्चों में बांटना है। 3 बच्चे हैं वहां पे, ओके? एक मैं, एक आप, एक आपकी फ्रेंड, तीनों में ये फ्रूट्स को बांटना है। आप तो कैसे बांटा आपने? 4 एक को दिया, और एक को 4 दिया, और एक को 4 दिया, दैट्स ऑल। समझ में आया? जी। समझ में आया? यस। सो 2 आउट ऑफ 3 अब इन्होंने पूछा, तो 2 आउट ऑफ 3 इज नथिंग बट दो बच्चों के लिए आपने कितने दिया? टोटल 8 दिया। आपके पास कितने बचे? 4। सो 2 आउट ऑफ 3 कौन सा है? ये 2 आउट ऑफ 3 है, ये 3 आउट ऑफ 3 है, विच इज 1 आउट ऑफ 3। ये एक पार्ट बना था आपका, एक पार्ट बना था, एक पार्ट बना था। 1 आउट ऑफ 3 ये, करेक्ट? जी। सिंगल है, ये 1 आउट ऑफ 3 है। अगर 2 आउट ऑफ 3 देखोगे तो 2 है, ये और ये 2 आउट ऑफ 3। 3 आउट ऑफ 3 मतलब ये भी, ये भी, ये भी। समझ में आ रहा है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फ्रूट्स का देखा, बॉल्स का देखा, एक और देखते हैं। ये ट्रैफिक कोन्स है। इन्होंने पूछा 3 आउट ऑफ 5 बनाओ, तो अब 5 लोगों पे डिवाइड करना है आपको। कैसे करोगे? कैसे करोगे आयशा? आयशा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, आपको टाइम चाहिए, मैं इजी वे बता दूंगी आपको। फर्स्ट आप 5 लोग को बना लो, ओके? 5 है, नीचे हो ओके। गए, 1 2 3 4 5, ओके? तो फिर उसको एक 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 डालते जाओ, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो यहाँ 5 हो गए। ऐसे इस तरह डालते जाओ, ओके? आपको इजी हो जाएगा। ओके, ट्राई इट आउट। आप रफ बुक में ट्राई करो, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताओ। मैं 7 दूंगी। देयर आर टोटल 20 बॉल्स, ओके? आपने टोटल देखा कितना है? 20। हाँ 20। अब 20 को आप कितने में डिवाइड करना है? 5 में डिवाइड करना है। इट्स वेरी इजी। ईच को कितने दोगे आप? तो मैं 20 को उनको 5 दूंगी। 5 5? हाँ। नो। हम्म, अगर आपने 7। 5 लोगों को, देखो बेटा, अगर आपने 5 लोगों को 5 दे दिए, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब 5 हैं, पहले को 5 दिया, सेकेंड को 5 दिया, थर्ड को 5 दिया, फोर्थ को 5 दिया, अब फिफ्थ को बचा नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने हैं? 20 है, करेक्ट? 5 जी। 1 5 2, फिफ्थ को कुछ भी नहीं बचेगा। हमें ऑल 5 लोगों को कितना देना है? 20। 5। 20 में बांटना है, 5 नहीं हो सकता बेटा, बिकॉज लास्ट को कुछ नहीं मिलेगा। 5 लोगों में 20 को बांटे, कैसे बांटते हैं आप? इट्स सिंपल डिविजन। ईच वन कितने लेगा? 4 बार।
हाँ बेटा 4, क्यों 4? अब टोटल देखो आप, 4 1 4 2 8 4 4 3 12 लगेगा 4 4 5 24 लगेगा, समझ में आया आपको? यस। इसके अंदर अब 3 3 3 3 पार्ट्स लो, 3 पीपल्स कितना लेंगे, 3 पीपल्स कितना लेंगे? टेल मी, कम ऑन टेल मी, 3 पीपल्स कितना लेंगे? 12 लेंगे, करेक्ट। 4 2 8 4 3 12, वेरी गुड बेटा। सो 12 each one is 4, राइट? ऐसा लिखो आप, 4 each one को 4 दोगे, करेक्ट? जी 4 4 4 एंड बचा हुआ 4। अब इसमें 3 पार्ट्स दिखाओ, 3 पार्ट्स, 1 2 3, ठीक है? तो 3 पार्ट्स में कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट? 12 कोन्स इन 3 पार्ट्स, so it is 3 out of 5। तो आपने शेड कर दिया, करेक्ट? जी समझ में आ गया बेटा कैसे करते हैं? देखो इस तरह उन्होंने 4 डिवाइड किया, करेक्ट? ईच वन को 4 दिया, करेक्ट और रॉन्ग? 5 बच्चों में 4 दे दिया, 4 दिया, करेक्ट? हाँ 4 दे दिया 4, सब। हाँ सबको 4 दे दिया। इसमें 3 पार्ट्स बताओ, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। ये 3 पार्ट शेड करोगे। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 3 आउट ऑफ 5, उन्होंने ऑलरेडी बताया, राइट? ये 5 पार्ट्स बनेंगे, 5 पार्ट्स में 3 पार्ट्स कितना होगा? इट इज 12 पार्ट्स, राइट? 12 कोन्स, 12 ट्रैफिक कोन्स, करेक्ट? अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है बेटा? हाँ अब मुझे बताओ 1/2, इस फ्लावर में 1/2 कौन सा है? ये बी वाला 1/2 मतलब हाफ ऑफ द फ्लावर्स कौन सा है बेटा? I'll just come in a minute. आप इसका सॉल्यूशन ढूंढते रहो, मैं जस्ट 1 मिनट में आ जाऊंगी, ओके? ठीक जस्ट गिव मी अ मिनट। फाइंड द सॉल्यूशन सून। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस आयशा? बेटा कौन सा आंसर है इसमें? सी थर्ड वन। इसमें इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब क्या है? इट इज हाफ ऑफ दीज फ्लावर्स। व्हाट इज हाफ ऑफ दीज फ्लावर्स? पहले आपको टोटल गिनना है। व्हाट्स द टोटल बेटा? 12 है ना? 12 का हाफ हाँ कितना है? 6 है, करेक्ट? तो 6 फ्लावर्स आर दी हाफ, करेक्ट? यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स इजी। अब आपको 3/4 बताया गया है, आप कैसे ढूंढोगे? मैंने आपको बताया था 3 आउट ऑफ 4। आप इसको फर्स्ट 4 पार्ट्स बनाओगे। 4 पार्ट्स कहाँ पे? इसमें 4 पार्ट्स हैं क्या? यस, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, करेक्ट? तो यही वाला आंसर है क्या? इसमें 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स कौन सा है बेटा? कौन सा वाला आंसर है बताओ? B1, राइट? ये यस, माशाल्लाह, यस बेटा, इट्स द आंसर। अब समझ में आ रहा है आपको? 3 आउट ऑफ 4 किसे बताते हैं? फर्स्ट 4 पार्ट्स बनाते हैं उसमें, एंड उसमें से 3 पार्ट्स हम सेलेक्ट करते हैं। 3 पार्ट्स ये है, करेक्ट? सो दिस इज द 3 पार्ट्स। समझ में आ रहा है आपको? हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ओके, इस फ्रैक्शन को हम क्या बताते हैं? 0 आउट ऑफ 8। कुछ भी यहाँ कलर्ड नहीं है। व्हाट इज हाँ दिस कॉल्ड बेटा नाउ? 0 आउट ना, सेकंड वन बताओ आप मुझे। यहाँ कितने 1 कलर्ड आउट फ्रूट्स हैं? ऑफ 8 यस, सेकंड वन, थर्ड वन इज 2 आउट ऑफ 8। अब ये वाला बताओ, ये वाला। 8 Okay, this one beta, 4 out of 8 as it is. Now this one, 8 it's 8 again. Yes, mashallah. Now this one,
8 out of 8. Okay, mashallah. No, it's not 8 out of 8. It's wrong. Oh, yeah. 1. Not at all, बेटा. अपने colored portion देखना है. कितने colored portions हैं? इसमें 8 कलर है. 7. 7 कलर है बेटा. देखो आप एक बार काउंट कर देखो. 1 2 3 4 1 2 5 3 6 4 5 6 7. 37 out ये of 8. पूरे डब्बे 8 के ही है. 8 की है. या आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज दिस. ये तो ऑलरेडी है. ये तो ऑलरेडी है. इसका मतलब क्या है? All 8 are colored out of 8, correct? हाँ, पहले आयशा 3 ऑल शेडेड है. हाँ, आयशा के पास एक केक था. इसमें 4 स्लाइसेस किए थे एंड 4 पीसेस भी आयशा ने खा लिया. तो 4 out of 4. What do you say this? It is 4 out of 4. और 4 out of 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1, करेक्ट. 4 out of 4 को 1 कैसे लिख सकते हैं हम? क्योंकि ये एक होल है. एक होल है, करेक्ट. 4 out of 4 को 1 कैसे लिख सकते हैं? आपको 4 out of 4 इज ऑलवेज ए होल. इसका मतलब ये है कि 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. नहीं मिलेगा. दैट्स ऑल. इसका मतलब यही है. ओके, समझ में आ रहा है आपको? जी. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. अब बताओ मुझे, अब हमने क्या सीखा है? रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन. वी हैव in the words how it is written 1/5, right? 1 over 5 is written as 1/5. इस पिक्चर्स में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. 3/10, correct? 3 over 10. Okay, 3 it's represented in pictures as this, right? 10 हम ब्लॉक्स बनाते हैं एंड इसमें 3 हम शेड करते हैं, करेक्ट? हाँ. Yes, alhamdulillah. Now, let's count this बेटा. पहले हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम इस ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस ब्लॉक को कैसे, इस ब्लॉक को कैसे, हम वो देखते हैं. ओके, चलो. हाउ यू डू दिस इज, पहले हम एंटायर काउंट करते हैं ना. करेक्ट. व्हाट्स द एंटायर दिस वन. कैसे काउंट करते हैं बेटा? डू यू नो दिस? डू यू रिमेम्बर दिस? इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो एक होल का हमने 10 पार्ट्स बना लिया. कितने पार्ट्स? 10 पार्ट्स. फर्स्ट वन को क्या बताते हैं? शेडेड है. हाँ, यस. फर्स्ट वन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? 0. 0 out of 10, राइट? फर्स्ट पार्ट को क्या बताते हैं? 0 out of 10. सेकेंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट, करेक्ट? 1 out of 10. सॉरी, 2 out of 10. यहाँ 0 out of 10. ये 1 out of 10, करेक्ट? हाँ. ये 2 out of 10. out of 10. ये 3 out of 10. 10. 4 out of 10. 5 out of 10. 6 out of 10. लेकिन 6 शेडेड नहीं है, राइट? हाँ. सो यही रहने देते हैं. सो इट इज 5 out of 10. 5 out of 10 आर शेडेड. इस तरह बताते हैं हम, राइट? करेक्ट, माशाल्लाह. अब अगर हमारे पास अगर बेटा हमने पूरा यहाँ तक शेड किया होता तो हम इसको, इस पार्ट को क्या लिखते? तो इसे 1, इसे 1 डालकर और फुल शेडेड है. ये कौन सा पार्ट होता बेटा? विच इज दिस पार्ट बेटा? ये 5th out of 10 था, करेक्ट? ये वाला कौन सा है? 6 out of 10, करेक्ट? तो ये वाला कौन सा होगा बेटा? ये अनशेडेड पार्ट. हम शेड कर देते हैं. ओके, इट्स शेडेड नाउ. नाउ इट्स शेडेड. ओके, अब बताओ ये वाला पार्ट कौन सा है? 10 out of 10 by 10. 10 out of 10 लास्ट वाला होता है बेटा. उससे पहले का कौन सा होता है? 7 out of 10. नो बेटा, ये 5 out of 10 है, ये 6 out of 10 है. इट्स इजी ना. 7 out of 10 है, 7 out of 10. ये 8 out of 10 है. मैंने ये बताया था. ये वाला कौन सा है? 9 out of 10 बेटा. ओके, दिस इज 9 out of 10, करेक्ट? Yeah. The last one is 10 out of 10. और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 by 10. और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 1.
1 भी लिख सकते हैं, वेरी गुड, यू कैन राइट इट एज 1। अगर हमने 10 आउट ऑफ 10 से ज्यादा, आफ्टर 10 आउट ऑफ 10 अगर लिखना होता तो आप क्या लिखते इसको, 11 आउट ऑफ 10 लिखते, करेक्ट। आफ्टर अगर यहाँ हमने बनाया होता एक और, ये वाला 10 आउट ऑफ 10 है राइट, लास्ट ब्लॉक, इसके बाद हमने एक और बनाया होता तो देन व्हाट विल कॉल इट एज 11 आउट 11 ऑफ out 10। of 11। इट इज नॉट 11 आउट ऑफ 11, इट इज 11 आउट ऑफ 10 लिखते हैं हम, ओके। जी। लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है राइट, व्हाट इज न्यूमरेटर बेटा? न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर। यूजुअली हमने जो भी देखा है इसमें न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेसर देन डिनोमिनेटर, करेक्ट। हमने जो भी पढ़ा था अब तक इसमें एवरी टाइम न्यूमरेटर वाज लेसर देन डिनोमिनेटर। व्हाट वाज दैट? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। व्हाट डू वी कॉल दिस? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने पढ़ा है आपके करिकुलम में? शायद शायद पढ़ा है, ओके। इट्स देयर इन योर करिकुलम, बट एक्चुअली इट्स देयर इन योर सिलेबस। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? व्हेन द न्यूमरेटर इज greater than denominator then it is called as improper fraction। अगर यहाँ नीचे 10 by 10 है, 2 by 10, now tell me 2 by 10 is proper or improper? It is proper, correct। अगर मैंने इसके बदल 12 out of 10 बता दिया तो it is an improper fraction। Why? Because numerator बड़ा है denominator से, correct। हाँ। अब तक हमने क्या सीखा था? 0 टू, देखो ये वाला ही देख लो, ये वाला 1, 0 आउट ऑफ 10 देखा, 0 इज लेस देन 10, करेक्ट। यहाँ देखो लास्ट वाला 9 आउट ऑफ 10 देखा, 10 आउट ऑफ 10 देखा, यहाँ तक तो ठीक था। हमने एक और अगर ब्लॉक्स डाला और इसको 11 आउट ऑफ 10 लिखा तो 11 आउट ऑफ 10 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, करेक्ट। हाँ। यस, तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम ये सॉल्व करते हैं। व्हिच इज लार्जर हियर बेटा? 6 8 इज लार्जर और 2 8 इज लार्जर? ये वाला लार्जर। क्यों लार्जर है बेटा? बिकॉज ज्यादा एरिया कवर कर है एंड 6 पोर्शंस बताए गए हैं, यहाँ सिर्फ 2 पोर्शंस बताए गए हैं, ओके। अगर मैंने आपको फ्रैक्शंस दिया 4 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10, इसको असेंडेंट में लिखो। इसको असेंडिंग में कैसे लिखोगे आयशा? असेंडिंग में हम लिखेंगे 2 आउट ऑफ 10 एंड 3 आउट ऑफ 10 और 4 आउट ऑफ। वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह, समझ में आ रहा है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ कैन यू अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर? पहले उन्होंने बताया 6 ऑफ 8, 6 आउट ऑफ 8, ओके। नेक्स्ट उन्होंने बताया 5 आउट ऑफ 8, नेक्स्ट उन्होंने बताया 3 आउट ऑफ 8। अब इसको, हाँ, अब इसको असेंडिंग में लिखो बेटा। पहले क्या लिखोगे? असेंडिंग में यस, असेंडिंग अगेन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। वेरी गुड बेटा। टायर्ड हो क्या आप? थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा सा, ओके। आई विल टेक 5 to 10 more minutes, ओके। अब देखो आप, ये इमेज है, इसमें नंबर ऑफ शेडेड, हमने फ्रैक्शंस कैसे लिखा था, जस्ट रिकैप है, ओके। हमने जो भी सीखा है उसका रिकैप है। आपको इजी होगा फ्रैक्शन सीखने में, ओके। नाउ टेल मी, नाउ डिनोट दिस इन फ्रैक्शंस बेटा। ये 1 शेडेड है। आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 8, करेक्ट। तो इसको हम लिखेंगे 1 आउट ऑफ 8। तो इसमें पार्ट कौन सा है? 1 इज अ पार्ट, राइट, विच इज अ होल, 8 इज अ होल, करेक्ट। So which is a part here now? 4 parts out of how much? 10. 10. So it is 4 out of 10. तो यहाँ बताओ लास्ट वाला क्या आंसर है? ये तो पूरा शेडेड ही है। So 8 parts out of 8 are shaded. So it is 8 over 8 or it is called as 1, correct? Yes, alhamdulillah. So now we have one more thing, one more concept which is called as mixed numbers, okay? Mixed numbers क्या होते हैं? I'll tell you. आप देखो, अगर आप सुपरमार्केट जाते हो और 1.5 लीटर ऑफ मिल्क लाते हो तो इसको किस तरह लिखते हैं आप? इस तरह लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं? 1 लिखते हैं, फिर हाफ लिखते हैं,
ठीक है, जी 1 लीटर लाया, फिर उसके साथ हाफ लीटर मिल्क लाया आपने, करेक्ट। हाँ So we write it as mixed fraction. इसको mixed fraction बोलते हैं. What is a mixed fraction? Mixed fraction has a whole number as well as a fraction. What does a mixed fraction have? one whole number. एक whole number भी है उसके साथ and it has a fraction as well. Okay, understood? What is a mixed fraction? What is a mixed number? Mixed number has a whole number as well as it has a fraction. Okay, for example, if I tell Aisha has scored 95.5 in her maths exam out of 100, तो इसका मतलब ये है कि आयशा ने 95 स्कोर किया and half स्कोर किया उसके साथ, करेक्ट। जी So it is 95 and half, correct? How do you call this? 95 and half. इसमें whole part कौन सा है? 95 is whole, which is the fraction part. Half is the whole. fraction part. ये 1/2 fraction, right ना? जी हाफ किस तरह लिखते हो आप? 1/2, करेक्ट। क्वार्टर किस तरह लिखते हो आप? 1/4। पता है आपको ये पता है क्या बेटा? 1/2 एंड 1/4। ये तो नंबर है। ये तो नंबर नहीं, ये तो फ्रैक्शंस है बेटा, इट इज फ्रैक्शन। हाफ का मतलब क्या होता है? अगर टू पार्ट्स बनाए गए हैं तो अगर उसमें से एक पार्ट दोगे तो इट इज कॉल्ड एज एन हाफ, करेक्ट जी जी। एक केक के अगर 2 पार्ट्स बनाए गए हैं एंड एक पार्ट हमने खा लिया तो व्हाट वाज ईटन आयशा? हाफ ऑफ इट वाज ईटन, राइट? हाफ इसको बोलते हैं, 1/2 को हाफ बोलते हैं, ओके। यू हैव टू जैसे रिमेंबर कि दिस। मेरे पास एक कुकी है, उसमें से आधा तोड़ के मैं मेरी फ्रेंड को दे दूंगी। दे दिया तो इसको फ्रैक्शन में किस तरह लिख सकते हो आप? 1/2। हाफ इज 1/2, करेक्ट। समझ में आया? तो आपके पास 2 कुकीज है, ओके। यू हैव 2 कुकीज नाउ। यू हैव गिवन this much and this much to your friend. Now tell me in fractions, how will you write this? 1/2. No, beta. I'll tell you again. You have 2 whole cookies, okay? You have given 1 cookie and A this half much. cookie. Yes. How do you do this? How do you write this now? What you write is 1. You write 1 as a whole, correct? And then you write, I have given half, right? This is called as mixed number. Understood now? What is a mixed number? You have given 1 whole number as well as you have made a fraction of it as well, okay? Okay. Alhamdulillah, now we have understood. Now the question here is, okay, 2 of 3 equal parts, 2/3. This is not needed. This we have already cleared, okay. Okay, how do we write this, beta? 2 and 3? 3/5. This is a mixed fraction. We have already discussed. If I tell you 1 and half, then we write it as 1 space half, correct? Okay. Now, if I say you, if Aisha has given 2 cookies and 3/5 to her friend, then how do you do this? Is Aisha has given 2 and 3/5. Am I right? Yes. How do you write this, Aisha? What you have to do is, this is a whole number, write it as it is. 3/5 is nothing but a fraction part. How do you write is 3? 3 is in the numerator, 5 is in the denominator. That's all. So it is 2, 3/5. Is it right or wrong? Right. Right. Understood? We have 2 whole cookies. Aisha has given 2 whole cookies to her friend, and also she has given 3/5 of the cookie to her friend. 3/5 is written as 3/5. 3 out of 5 parts. समझ में आ रहा है? जी. Mixed fraction किस तरह लिखते हैं? अब मुझे बताओ, Aisha has given 8 cookies to her friend and also 9/10 of another cookie to her friend. This is 8. 9/10. How do you write this? 9/10. Very good, beta, mashallah. So it is 8. It is not 89/10, correct? How do you pronounce it? 8 space 9/10, correct? Yes. It is not 89/10. How do you say it? 8 and 9/10, correct?
So we Yeah. have 8 wholes, 9 out of 10 parts. So it's 8, 9 and 9 over 10. Now, how do you write this in words, beta? Write it in words. Aisha has given 2. You have to write it in words. 2 and 2 and 38. not at all. 3 3 8. 8. 3 8. Okay. Mashallah. Understood now? Ji. Alhamdulillah. See, how do you write this? In this way. Okay, so have you understood how to represent the fractions? Ji. अब इसको represent करो. 2 and 3 3. क्या लिखते हो? 4th. समझ में आ रहा है? जी. ओके बेटा, माशाल्लाह. चलो, अब हम सीखेंगे इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस. अब सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने का पता चला आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन? जी. आयशा ने 1.5 कुकी दिया तो इसका मतलब 1 1/2. करेक्ट. आयशा ने 2 3/4 कुकी दिया तो 2 3/4. करेक्ट. जी. इस तरह दिखते हैं. What is a mixed fraction and what is an improper fraction? There is a difference. Okay. मैंने improper fraction के बारे में कुछ बताया था. Do you remember what is an improper fraction now, Aisha? जो सम रॉन्ग है वो वाला. नहीं बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बताया था बीच में रुकाकर. हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है और उसमें असेंडिंग करते हैं. Okay. Improper में क्या होता है? Numerator is greater than denominator. What did I say is numerator is always greater than denominator. Okay. Okay. इसको improper fraction बोलते हैं. And mixed fraction अभी हमने सीखा है. Mixed fraction में एक whole number रहता है, उसके साथ एक fraction number रहता है. 4.5. Aisha has given 4.5 cookie to her friends. Correct? Yes. तो improper and mixed fraction का difference पता चल गया आपको? ठीक है. उसमें मतलब हाफ है. बेटा उसका मतलब हाफ है. किसका मतलब? 1/2 का? हाँ. मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है आपने बताया? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या था मैंने डिस्कस किया था? इट इज नथिंग बट एक होल नंबर रहना चाहिए 2 या 4 या समथिंग, और उसके साथ एक फ्रैक्शन रहना चाहिए. या तो वो हाफ हो सकता है, या तो वो क्वार्टर हो सकता है, 1/4 हो सकता है, या तो 2/8 हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है. टू एक होल नंबर एंड एक फ्रैक्शन रहना चाहिए. दैट्स ऑल. समझ में आ रहा है? मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था व्हाट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. यहाँ पे है ना बेटा, देखो 2 3/8 is a fraction, is a whole number. Isn't this a whole number? 2 3/8 is a whole number. यहाँ पे एक whole number है and यहाँ पे एक fraction है, so it is a mixed fraction. What is it? It's a mixed fraction. Why is it called as a mixed fraction? इसमें एक whole है और एक fraction है. करेक्ट? अब समझ में आ गया? Okay. We have an improper fraction and mixed fraction के बारे में हम सीखेंगे. Quickly, I'll just give you a hint. Tomorrow we'll learn in depth. Okay? Okay. What is an improper and mixed fraction? Improper fraction का मतलब होता है अगर हमने दो नंबर्स को फॉर एग्जाम्पल 2/8 लिखा है, ये फ्रैक्शन है. करेक्ट? जी. मुझे फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स बताओ आयशा. 3 out of 9 and 8 out of 5 and हाँ 2 बेटा, out हाँ करेक्ट. 2 out of 1. 1. ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे हमने 4 फ्रैक्शंस लिखा हुआ है. ओके. जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. ओके. whichever फ्रैक्शन में ऊपर का पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से बड़ा होता है, दैट वी कॉल एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. समझ में आ रहा है? टेल मी व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आयशा. ऊपर वाला नंबर वो नीचे वाले नंबर से बड़ा रहता है. करेक्ट? जी. जी. अब यहाँ पे कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आयशा? इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये भी है. कौन सा वाला बेटा?
ये वाला हाँ ये 8/5, 8/5 है, ये भी है, यस। और दूसरा ये नो, देखो आप, ये 3 इज बिगर देन 9 क्या? नहीं 9 बिगर है। नहीं, 9 बिगर है। 2 इज बिगर देन 8 क्या? नो। 8 is bigger than 5? Yes, this is an improper fraction. Now tell me, which is this an improper fraction? Yes, because 2 is bigger than 1, correct? So इसमें ये improper fraction क्या है? 2/1 and ये। अब so improper fraction का मतलब पता चल गया आपको? What is an improper fraction? यहाँ 8/5 is an improper fraction. समझ में आ रहा है? Why is it an improper fraction? Because whenever you see the numerator part, it is always greater than no denominator. Very good, mashallah. Numerator is greater than denominator. इसको improper क्यों बोलते हैं बेटा? Because अब देखो हमारे पास यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, करेक्ट? जी जी हमने एक फिगर को 5 पार्ट्स में बनाया है। इसमें फर्स्ट पार्ट को क्या बताते हैं? 1/5, करेक्ट? सेकेंड पार्ट इज 2/5, थर्ड पार्ट इज 3/5, फोर्थ पार्ट इज 4/5, नेक्स्ट पार्ट then इज 5/5. 5/5 is nothing but It's a whole. whole 1, करेक्ट? इट्स ए होल, इट इज 1। अब इन्होंने जो पूछा है, इन्होंने 8/5 बताया है। हमारे पास होल ऑलरेडी मिल गया, करेक्ट? हाँ करेक्ट। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था 8/5, सो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाई इज इट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? बिकॉज देखो आप, बिकॉज हमारे पास होल मिल गया है ऑलरेडी, लेकिन हमें फिर से इसको एक और बनाकर डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताते हैं। ओके जी अब देखो 8/5 कहाँ आएगा? कहाँ भी नहीं। कहीं भी नहीं। सो क्या करते हैं हम इसमें? हम क्या करते हैं, देखो बेटा, व्हाट वी डू हियर इज 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। ये इसको नेक्स्ट एक और बनाकर इसको 6/5 लिखते हैं, इसको 7/5 लिखते हैं, इसको 8/5 लिखते हैं। ओके ओके Okay, that's so it is called as an improper fraction because it is greater than this one. यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखो समझ में आ रहा है? improper fraction कौन सा है? ये वाला improper है, correct? ये वाला proper है, it is proper, correct? Because it is equal, यहाँ तक correct है, correct? Numerator is equal to denominator तक है, ये numerator is greater than denominator. You're bored? Aisha, you're bored? Tired? Little. We'll just quickly finish the improper fractions and then tomorrow we'll study the mixed fractions. Okay, it's just this one. Okay, improper इतना ही है। improper fraction का मतलब आपको पता होना चाहिए। improper fraction का मतलब क्या है? The numerator part is greater than the denominator part. That's all. यहाँ पे देखो 8/8 is an improper fraction क्या? No. No. It's 1, right? It's not an improper fraction. Improper fraction has numerator. It's a whole numerator that is greater than or equal to the denominators. Alhamdulillah. Improper fraction का मतलब समझ में आ गया। Mixed fraction हम कल सीखेंगे। Okay? What is a mixed fraction? उसको कैसे लिखते हैं? And all. Okay? ये आपने सीखा है क्या आपके स्कूल में? नहीं। Mixed fraction नहीं सीखा है? नहीं। Are you sure? Are you sure बेटा? ये टर्म 3 में सिखाया था। टर्म 3 में उन्होंने सिखाया था। ये टर्म 4 का सिलेबस है ना फिर आपको? आपके पास नोट्स है क्या मैथ्स की? नहीं, वो हमारे बुक उधर ही रख लेते हैं, वो वहीं पे रख लेते हैं। ओके 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 बेटा, ओके दैट्स फाइन। आज के लिए बस इतना ही था। एक और टॉपिक है, सीख लेंगे क्या? जस्ट 2 to 3 स्लाइड्स मिक्स फ्रैक्शन का। ठीक है, कल हम इंग्लिश सीख लेंगे। ओके, जस्ट 5 मिनट्स दे दो आप। ओके, ये आप रिवाइज करोगे तो बहुत इजी है। ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। मैंने अब मिक्स फ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/2। आपने जैसे बताया था 1 cookie and half cookie, करेक्ट? इट्स नॉट ऑलवेज हाफ।
इसमें एक होल नंबर रहना चाहिए और एक फ्रैक्शन पार्ट रहना चाहिए, करेक्ट? दैट्स ऑल। एक होल नंबर, एक फ्रैक्शन, W and F, एक होल नंबर, एक फ्रैक्शन। ओके बेटा, व्हाट्स अ मिक्स्ड जी फ्रैक्शन? इट हैज एन होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन पार्ट, करेक्ट? जी ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्होंने यहाँ पे एक नंबर लाइन दिया है, क्विकली इसमें 12 आउट ऑफ 10 दिखाओ बेटा मुझे। so ये फर्स्ट वाला 1 आउट ऑफ 10 है, 2 आउट ऑफ 10 है, 3 आउट ऑफ 10 है। इधर आता है 12 आउट ऑफ 10। यस, माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। नेक्स्ट आप बताओ 15 आउट ऑफ 10। ये वाला यस, वेरी गुड, 15 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बताओ 8 आउट ऑफ 10। ये वाला Yes, very good. It is 8 out of 10. Mashallah, very good. Now tell me which is an improper in this, Aisha? the improper fraction in this is this and this. Yes, very good, because it is more than 10. Correct? These are the improper fractions. Mashallah, very good, bit excellent. Just इतना ही आपको कौन सा proper है कौन सा improper है, just आपको representation सीखना होगा उतना ही. Okay? Okay. 8 out of 5, 1 out 1 over 3 over 5. Pictures में इस तरह बताते हैं. I'll tell you how. एक second. Okay बेटा, यहाँ पे आपके पास I'll give you an image. I'll quickly tell you how to do this. चलो, मेरे पास एक हमने लास्ट में सीखा था इसको. ओके, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5. ओके, दिस इज अ ब्लॉक. ओके, एक बॉक्स है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. ओके, हाउ मेनी पार्ट्स? 5 इक्वल पार्ट्स. अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, शो 8 आउट ऑफ 5. कैन यू शो 8 आउट ऑफ 5 हियर बेटा? No, because we have only 5 parts here. So what we do here is we make another box and we divide it into another 5 equal parts, correct? Yeah. तो हमने यहाँ पे हमारे पास 1 out of 5, 2 out of 5, 3 out of 5, 4 out of 5, 5 out of 5. यहाँ कितना है हमारे पास? 1 whole है, correct? 1 जी whole है. And हमें और कितना चाहिए 8 out of 5 बनने के लिए? और थोड़ा चाहिए. और कितना थोड़ा बेटा? पूरा नहीं, ये हमारे पास अगेन 4 out of 5, 5 out of 5. ओके, अब मुझे बताओ इसमें से आप कितना सेलेक्ट करोगे 8 out of 5 बनाने के लिए? यहाँ से 5 लिया, यहाँ से कितना लोगे? पूरा ले लेंगे. नहीं बेटा, 8 out of 5 चाहिए हमें. 8 out of 5 चाहिए तो हम कितना हमें लेंगे? यहाँ तक लेंगे. यहाँ से 4 लिया, यहाँ से 3 लेंगे. वेरी गुड, यहाँ से 3 out of 5 लेंगे, करेक्ट? जी. सो हमारे पास यहाँ एक होल है, 1 है, करेक्ट? यहाँ 3 out of 5 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 3 out of 5 इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन. समझ में आ रहा है? जी. 1 3 out of 5, करेक्ट? हाँ. हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज जैसा है वैसा ही, 8 out of 5. इसको पिक्चर्स में देखो, इस तरह रिप्रेजेंट किए हमने, करेक्ट? यस. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ द फाइनल वन, इसको आप सॉल्व कर कर बताओगे. क्वेश्चन है, व्हाट्स द क्वेश्चन बेटा? 6 out of 5 बताओ. 6 out of 5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो. आप इसको किस तरह लिख सकते हो बेटा? पहले इसको आप होल लिख सकते हो, ये सर्कल को क्या लिख सकते हो? 1, करेक्ट? हाँ. इसका मतलब है 6 out of 6, करेक्ट? 6 out of 5, 6 out of 5, सॉरी 5 out of 5 को 1 लिख सकते हो. एंड ये जो शेडेड पार्ट है इसको क्या लिखोगे? 1 out of 5. 1 and 1 out of 5, करेक्ट? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1 out of 5. समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह. अब इसको किस तरह लिखोगे? नेक्स्ट वाला, ये 1 होल है, करेक्ट? 1 होल इसी तरह रख दो. इसमें कितना बचा है पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट? 5 out of कितना फ्रैक्शन पार्ट है? 5 out of 8 शेडेड है ना? कितना शेडेड है? 5 out of 8. So it is 1 5 out of 8 in the mixed fraction, correct? Okay. Okay, alhamdulillah. चलो, इन्होंने यहाँ क्वेश्चन बताया है 1 2 over 3
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5/3 लिखा गया है। अब 3/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह लिखते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। 3/2 को किस तरह लिखते हैं? देखो यहाँ मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स। इसमें जो नीचे दिया गया है 2 इक्वल पार्ट्स बनाना है। कितने बनाना है एक बॉक्स के? 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब हमारे पास 1/2 है एंड 2/2 है, करेक्ट? इट इज अ होल। लेकिन हमें चाहिए क्या? 3/2, करेक्ट? यस। 3/2 यहाँ पे है क्या? नहीं। है। तो हम एक और बॉक्स ले लेते हैं और इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में बनाते हैं। और हमें 3/2 कहाँ से मिलेगा? पहला पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट? ये वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास दिस वन इज अ होल, वन बॉक्स, करेक्ट? यस। ये शेड करोगे तो ये वन होल बॉक्स है हमारे पास। और इसके साथ पहले वाला शेड करोगे तो हाफ, राइट? 1/2। सो इट इज 1/2। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? 1/2। समझ में आ रहा है? जी। जी। हम इसको अब हाफ करेंगे। हाँ, इसको हाफ लिखेंगे। 1/2 हाफ नहीं करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे हाफ की तरह। देखो यहाँ पे आप समझ रहे हो? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे 2 बॉक्सेस हमने क्यों क्रिएट किए थे? क्योंकि उन्होंने नीचे 2 दिया था, 3/2 दिया था। यहाँ देखो क्वेश्चन, कैन यू सी दिस क्वेश्चन बेटा? यस। What did it say in this question is 3/2। 3/2। 2 का मतलब क्या होता है? एक बॉक्स के सिर्फ 2 पार्ट्स बनाओ। यहाँ नीचे जो है 2 पार्ट्स, करेक्ट? 2 पार्ट्स बनाए। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 3 पार्ट्स चाहिए। तो हमें एक और बॉक्स लेना चाहिए जिसके सिर्फ 2 पार्ट्स हो और हमें 3 पार्ट्स को शेड करना है, करेक्ट? तो हमारे पास है वन होल बॉक्स एंड दी another box, one box which has 2 parts, correct? जी। ओके। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1/3 को लिखेंगे तो हमारे पास है 3/4 का। फर्स्ट हम ये बना लेते हैं, ओके? जी। 3/4 का देखो इस तरह, करेक्ट? शेड कर लेते हैं, ओके? ये फ्रैक्शन पार्ट है, करेक्ट? 1 का मतलब क्या होता है? 4/4 होता है, करेक्ट? हाँ। होल कब होगा? जब 4/4 होगा तो होल। दिस इज 4/4 एंड दिस इज 3/4। अगर 4/4 और 3/4 को ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 7/4, करेक्ट? जी। So this is 7/4 in the improper fraction. That's all. Alhamdulillah, we have completed the topic for the fractions. मैं आपको ये आप जिस किस में भी आप लॉग इन है, काइंडली इसका स्क्रीनशॉट निकालो बेटा। या तो स्नैपशॉट निकालो या तो स्क्रीनशॉट निकालो। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ओके? You have to solve this. Okay? Okay. Chalo beta, alhamdulillah, what we have studied today was fractions, improper fractions, mixed fractions, and everything about fractions that you wanted in your syllabus